Hello guys, good morning. Welcome back to my channel Rider Insane. So today is Saturday early morning and मैं निकल चुका हूँ एक छोटे सी 100 किलोमीटर साइड के लिए, मतलब आके जाके 250 किलोमीटर्स की राइड होगी शायद से. I'm pretty much excited, and right now I'm going to my friend's place, and from there we will be meeting one more friend, a friend you can say, or a relative of mine, at another meeting point. So right now is 6:55 a.m. in the morning, pretty much clear weather. So yeah, the first meeting point से हम निकल चुके हैं. I've met one of my friend Pratik, who has come to Nasik yesterday from Pune just for a ride. राइड के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं. So we have officially left for our destination. It's around 135 kilometers from here, from where we are right now. We have just passed ABB circle, so I think you guys who are from Nasik know this route, the Trambakeshwar route. So then आगे जाके पूछना भी नहीं पड़ेगा, मैप पे है. लेट्स सी कि वो रूट कैसा है. त्र्यंबकेश्वर का तक का रूट तो देयर आर 4 lanes, so that's not an issue. So yeah, we have in front of me, you can say, Pratik, and behind me there is Gaurav. So we'll introduce them later when we stop at certain point. Yeah, बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत दिनों बाद एक प्रॉपर राइड के लिए निकले. 100 किलोमीटर्स की 110 किलोमीटर्स की राइड है. तो या देखते हैं, मज़ा आएगा. जब भी हम कहीं पे रुकेंगे, आई विल शो यू दैट व्हाट आई यूज़, which tank pack I use, what mobile mount I am using, and my helmet and gyro. Helmets का तो आपको बता दिया था पिछले 2-3 वीडियो में. सो या एंड या जैकेट के बारे में भी बताऊंगा, कौन सा जैकेट है, कहाँ से लिया था, what is the price of that jacket, and what type of armor the jacket has. So yeah, till then, enjoy the view, enjoy the ride. तो ये रोड पहले सिंगल लेन हुआ करता था. मतलब नासिक से त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए भी ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा वी यूज्ड टू स्पेंड. बट नाउ आफ्टर कुंभ मेला, रोड हैज़ बिकम 4 lane, and yeah, we can cross Trambakeshwar in about 30 to 45 minutes only. So yeah, that's a good sign. And we have cyclists also over here. हर सैटरडे संडे आपको ये रोड पे बहुत सारे साइकिलिस्ट मिलेंगे जो मोस्टली ABB सर्कल से लेकर त्र्यंबकेश्वर तक जाते हैं एंड रिटर्न. So this is the place where हनुमान जी का जन्म हुआ था. The place is called Anjaneri, and if you trek this mountain on the top, I'm sure the camera is not doing the justice. So अगर आप ट्रैक करके ऊपर जाते हो पहाड़ों के ऊपर, तो आपको अंजनी माता, जो हनुमान जी की माता है, मतलब थी, तो उनका मंदिर है ऊपर. What a view, man, what a view. मस्त अच्छा लगता है यार ऐसे.
रास्ते पे गाड़ी चलाने के लिए, जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं, सिंगल लेन हुआ तो भी चलेगा, बस रोड अच्छा होना चाहिए. वी डोंट नीड potholes, वी डोंट वांट देम. So yeah, Pratik is riding his Dominar 400. I'm on my Avenger 150 straight, and behind me is Gaurav, who is riding the Royal Enfield Thunderbird 350. गौरव के पास भी डोमिनार है, लेकिन he works in Aurangabad, but due to lockdown he came here by bus or train, I don't know that. So yeah, he has borrowed his friend's bike for today. Crossing some ghat right now, and रास्ते थोड़े ठीक नहीं है, यहाँ पे गड्ढे है, so we need to be careful, and yeah, you guys enjoy the view. जस्ट एक छोटा सा ब्रेक लिया था, एक्चुअली मेरा गोप्रो स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो बैटरी निकाल के वापस चालू करना पड़ा. कुछ सेल्फीज भी खींचे. नाउ द रोड इज़ गुड, सिंगल लेन रोड है, लेकिन प्रॉपर रोड है, ज़्यादा पॉट होल्स नहीं. वी कैन डू द कॉर्नरिंग ऑल्सो, एंड या एवरीथिंग इज़ फाइन एंड सेफ. वी आर बिहाइंड द शेड्यूल. अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकेंगे, जो भी पहला अच्छा खासा ढाबा या फिर होटल जो भी हो आ जाएगा वहाँ पे, एंड देन वी विल कंटिन्यू फर्दर. टिल नाउ वी हैव डन 75 किलोमीटर फ्रॉम होम, मतलब मेरे घर से. We just had our breakfast at some random hotel or dhaba or whatever it was. At what tank bag I'm using? I'm using this Road Gods Z1, or I think it is Z1 tank bag. It's non-magnetic, and यहाँ पे मोबाइल रख सकते हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल मोबाइल यहाँ पे माउंट किया है, मतलब मैप देखने के लिए बहुत इजी जाता है. साइड में 2-3 जेब्स है, एंड मेन जहाँ पे मैंने मेरा सामान रखा है, ग्लेस, पावर बैंक, केबल्स, गोप्रो का बैटरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हैंडल के यहाँ पे इसका एक स्ट्रिप है, और एक पेट्रोल टैंक के नीचे से. We are now on Mumbai Ahmedabad highway.
हमारी डेस्टिनेशन यहाँ से बस कुछ 25-30 किलोमीटर्स है। या हमने सिंगल लेन से डायरेक्ट 6 लेन्स, ये दोनों तो आगे निकल गए, दे आर अबव 100। We have reached our destination, Umbergaon. This is the beach for the Umbergaon city. There are two to three chowpatties over here. This is one of them. Pretty nice place. We are just having nariyal pani over here, and then we will have lunch. So yeah, this is the view. Pretty nice view. कोई नहीं है यहाँ पे ज़्यादा, सैटरडे है, फिर भी शायद कोरोना के कारण तो शाम को पता नहीं भीड़ होती होगी या नहीं। या तो वेदर इज़ ऑल्सो क्लियर, गर्मी है, ठीक है, चलता है इतना। सो या चीयर्स टू लाइफ। एंड दीज आर आवर बाइक्स, दिस इज माई एवेंचर। This is the Thunderbird for Gaurav is riding, and this is the Dominar. ये दोनों आ गए मलाई लेके। सर जी आपके लिए। थैंक यू सो मच। और ये कवर है उसका, मास्क लगाने के लिए। तुम्ही खाल्ले? मला वाटलं इकडे घेऊन येत आहे। तिकडे उभे उभे काय करू असं। We just had lunch and we are heading back to Nasik right now. घर वालों से पता चला कि नासिक में बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है और लगता है यहाँ पे भी कुछ देर में बारिश होगी फॉर श्योर। सो पहले बहुत गर्मी हो रही थी, अभी तो डबल से गर्मी हो रही है क्योंकि अचानक जो हवा चल रही थी अच्छी खासी वो बंद हो गई है। So we are back on the Ahmedabad-Mumbai highway. थक गए यार, गर्मी की वजह से बहुत थकान महसूस होती है। That's why all riders say the perfect riding season is from November, December till February or max to max March. The Maharashtra check post right now. चेकिंग नहीं होगी, बस एक डाइवर्जन करके जाना पड़ेगा। और यहाँ से अभी ये महाराष्ट्र में ही है, लेकिन अगर मैं पीछे जाता हूँ अहमदाबाद साइड पे तो वहाँ पे भी मुझे गुजरात चेक पोस्ट के यहाँ से जाना पड़ेगा। सो या नथिंग टू वरी, इट्स जस्ट लाइक a toll where the buses or the containers, the trucks have to stop
they have to get some permit or whatever it may be. I don't know the details. I just want to share one thing. मैं तो मतलब जो बड़े बड़े राइडर्स है, I will not take the names. I'm sure आप में से काफ़ी लोग उन ब्लॉगर्स को भी फॉलो करते होंगे. तो बाइक चलाते वक्त ब्लॉग करना, मोटो ब्लॉगिंग करना, फिर जहाँ पे ब्रेक लिया है वहाँ पे भी कुछ आप वीडियो शूट कर रहे हो, कुछ बात करना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर दैट. मुझे भी लगता था यार बाइक चलाते वक्त ये शूट कर रहे हैं, ब्लॉग कर रहे हैं, दैट्स एन ईजी थिंग, हैंडल करना बहुत आसान होगा. बहुत भी नहीं, लेकिन ठीक है, मैनेजेबल. यस, दैट इज़ मैनेजेबल, बट you have to check the battery, you have to carry extra batteries for the GoPro or any action camera. Then if you are using a DSLR for your proper vlogging shoot, then उसके भी लेंस उसके लेंस संभालो, उसके माइक संभालो. एक तो DSLR का माइक साइज़ में बड़े होते हैं. You have to use the dead cats, and then उसका ट्राईपॉड, गोरिल्ला पॉड, फलाना ढिमकाना, एक्सेट्रा जो भी है वो. सो इट्स नॉट एन ईजी टास्क टू व्लॉग वाइल यू आर ट्रैवलिंग. काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है. इफ़ यू आर मोटो व्लॉगिंग या फिर आप ट्रैवलिंग करते हो, कोई बड़ी बाइक्स आपके पास है जैसे ट्रायम्स, BMW, हार्ली, तो देन व्हेन यू स्टॉप पीपल आस्क यू सेवरल क्वेश्चंस. कितने की बाइक है, क्या क्या है, कितना देती है, मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन फॉर इंडियंस. एक मतलब यू विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इफ यू गो टू एन प्लेस लाइक दिस इज नॉट सो नॉर्मल फॉर दैट फॉर दोज पीपल. सो आपकी सेफ्टी भी देखनी पड़ती है कि आप ब्लॉग कर रहे हो, तो फिर वहाँ पे कोई लोगों ने मतलब तमाशा नहीं बनाना चाहिए कि यहाँ पे शूट करना नहीं करने का आपको, ऐसा वैसा ये वो. तो एक कंटेंट क्रिएट करने के लिए किसी को भी ये सब झेलना पड़ता है. यू हैव टू मैनेज, यू हैव टू गेट द कंटेंट फॉर योर ऑडियंस, and then you have to present that video so that, and while all doing this you have to match the speed to your destination. ऐसा नहीं ये सब मैनेज करते रहो तो फिर लेट हो जाओ, तो फिर आपका आगे का जो भी प्लानिंग है वो फ्लॉप हो जाए. you still have to keep in mind about those things also. Has come to an end. गौरव भी अपने घर को चला गया, प्रतीक भी अपने घर पे चला गया, मैं मेरे घर पे जा रहा हूँ. बस कुछ मिनटों में आई विल रीच माई होम. या सैटरडे स्पेंट वेल, बहुत ही मज़ा आया राइड करने के लिए. सो जो भी है जैसा भी है, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर. बाय बाय.